Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Okay, so let us begin with new chapter, Regulatory and Developmental Framework. And this is our last chapter of EMFS. Let us see, so many things are repeated here. It is regulatory framework. That means who regulates. So it will be about RBI, it will be about banking and banking regulation at 1949 for banks. For insurance, it will be IRDA. So many things we have covered in earlier chapters, previous chapters. So let us see legal framework of banking. First, we are doing legal framework of banking, and then we will proceed towards legal framework of insurance. Legal framework means who is the regulatory authority who is looking after to the workings of banks, okay, and who is responsible for making rules and regulations for banking structure, okay. So that is known as legal framework. Means they are legally responsible for making the framework for banking companies, how to regulate banking companies, how should be the structure of banking companies, and who should be appointed, who should not be appointed, who should be appointed as an auditor, manager, what should be the holding period of the office of the manager or the auditor, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं लीगल फ्रेमवर्क में। हम उसमें पहली देखो दो चीजें होती है बैंकिंग में, लीगल फ्रेमवर्क में दो होते हैं। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 which we have done already in chapter number 5 in detail. You remember I have told you 9 points in banking regulation act 1949. Capital requirement, licensing, such like 9 points we have discussed. You remember? So same thing here, it is given banking regulation act 1949. See, if you want, I can show it to you. Wait, I'll show you. Yeah, this is the chapter. See, organizational structure, and management we have done. No? So in this, we have done banking regulation act 1949 in detail. I'll show it to you. Wait. See, banking regulation act 1949, and we have done 9 points related to it. Same 9 points is repeated again there. I mean, they have already shown you that you need to refer to chapter number 5. Definition of banking, what is the business that can be done under banking scenario, and what is the business that is prohibited for the banking business. Capital requirements, manage maintenance of liquid assets, that is CRR and SLR, licensing of the banks, opening of the new branch, inspection of the banks. That means inspection means checking, checking and scrutinizing, so that banks जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बैंक्स के वो ट्रू एंड फेयर हो, ये पता लगे कि वो ट्रू एंड फेयर हैं, ठीक है, कोई इलीगल बिजनेस नहीं कैरी ऑन हो रहा है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एडवांसेस, मतलब लोन्स या एडवांसेस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डालनी होती है तो वो भी बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ 1949 के हिसाब से आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। So same 9 points are repeated here. See, Banking Regulation Act 1949 is explained in chapter number 5 in detail. So we will not repeat it again. Next, we have RBI. Our first chapter we have done RBI in detail. RBI Act 1934. We have done this in detail. Okay. This is just organizational structure of RBI, like who is on the apex position of the RBI,
central board of directors, and then they have chairman is known as governor, then they have deputy governor, executive director, then they have principal chief general manager, then they have chief general manager, then general managers, deputy general managers, assistant general manager, then they have managers, assistant managers, support staff. So this is just an organization structure that is made here. Now objectives, we have done the objectives of RBI in first chapter. It is, see, we will quickly just revise it. Maintenance exchange, maintaining exchange stability means अगर मार्केट में करेंसी, जब हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं डॉलर्स के बजाय रुपीस, रुपीस के बजाय यूरोज, तो जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसको मेंटेन करना, मतलब स्टेबिलिटी लाना, वो भी आरबीआई के हाथ में होता है. बैंकर्स बैंक होता है, आरबीआई बैंकर्स बैंक, मतलब किसी बैंक को भी अगर जरूरत पड़ेगी फाइनेंस की, so RBI will help them. Government's bank मतलब if government wants funds, if government wants to perform any function related to agent and advisory, so sorry, RBI will perform functions related to an agent and advisory to the bank, to the government. That means अगर गवर्नमेंट को भी कभी फंड्स की नीड पड़ती है या एडवाइस की नीड पड़ती है या एजेंट की जरूरत पड़ती है, सो RBI performs all these functions. Development functions, अभी कहीं पे भी आपको डेवलपमेंट लानी है इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चरल एरिया में, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना है, या फिर किसी किसी एंटरप्रेन्योर को आगे लाना है, बिजनेस पर्सन को आगे लाना है, आपको उनको डेवलप करना है, तो RBI is responsible for that. RBI plays a very important role in this. नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक फंक्शन. ये जो आरबीआई आपको सर्विसेज देती है ना, वो कस्टमर सेंट्रिक फंक्शन होती है, मतलब जो कस्टमर को बेनिफिट करें, जैसे कस्टमर्स को चाहिए और जैसे कस्टमर्स को बेनिफिट करें. तो ये क्या थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई. अब है फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ये तो हम बहुत डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. देखो फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, प्रमोशन फंक्शन, प्रमोशन मतलब किसी की डेवलपमेंट लाना, किसी को आगे बढ़ाना, और सुपरवाइजरी फंक्शन. अब देखो एक एक, अगर हम देखेंगे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन मतलब बैंक के कौन से फंक्शन है. नोट इशुइंग अथॉरिटी, हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करती है, इट इज ओनली एंड ओनली अथॉरिटी टू इशू द नोट्स. ठीक है. banker to the government, banker to the banks, lender to last resort, मतलब आपको कहीं से कुछ नहीं हेल्प मिल रही है तो आपको कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, आरबीआई. नेशनल क्लियरिंग हाउस है ये, मतलब कहीं पे कुछ सेटलमेंट करनी है फंड्स की तो नेशनल क्लियरिंग हाउस से आप हेल्प ले सकते हैं, वो भी आरबीआई का ही ब्रांच होता है. क्रेडिट कंट्रोल, मार्केट में कितना क्रेडिट, कितना लोन्स जाने चाहिए, कितने लोन्स नहीं जाने चाहिए, उसका भी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, आरबीआई. ये हम सब कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. प्रमोशन फंक्शन में क्या बताया, दो जगहों पे वो प्रमोशन फंक्शन को बताते हैं. पहला आरबीआई एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब वो एग्रीकल्चरल एरिया को, मतलब एग्रीकल्चरल बिजनेस को, ऑक्यूपेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है, मतलब उनको फाइनेंस देना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या फिर उनको ऐसे बेनिफिट्स देना सो दैट उनका एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन है वो बढ़े. एंड दूसरा है आरबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मतलब इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देना सो दैट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो. सुपरवाइजरी फंक्शंस में भी बहुत सारे फंक्शंस है उनके. सुपरवाइजरी मतलब कंपनीज के ऊपर नजर रखना, उनकी वर्किंग्स को देखना, उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, अगर न्यू कोई ब्रांच, न्यू बैंकिंग कंपनी ओपन हो रही है, उनके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को देखना, लिक्विड एसेट्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो देखना. सुपरवाइजरी मतलब आप नजर रख रहे हो उनके ऊपर कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. सो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है सीआरआर एंड एसएलआर की फॉर्म में आप अपनी एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ब्रांच लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, ब्रांच को लाइसेंस चाहिए. इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक, जिसे हम ऑडिट भी कहते हैं, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिट, मतलब आप बैंक के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैंक सबमिट करती हैं वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, वो चेक करना, स्क्रूटिनाइज करना, एक बार गो थ्रू करना कि बैंक कैसे काम कर रही है. कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ये सारा आरबीआई
सुपरवाइजरी फंक्शंस में देखिए। और ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ। सो लेट अस क्विकली गो टू द अनदर हेडिंग, दैट इज डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। बहुत सिंपल है ये, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखो, इशू डिपार्टमेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो इशू डिपार्टमेंट क्या करता है, नोट्स इशू करने की अथॉरिटी, जिस एक पूरा डिपार्टमेंट बना गया है जिसको सिर्फ नोट्स इशू करने हैं, बनाकर नोट्स इशू करने की अथॉरिटी कंट्री में उनको दी गई है। कितने कंट्री में नोट्स इशू होते हैं, कितने होने चाहिए, कितने ऑफिस और ब्रांचेस में जाने चाहिए, और कितने बैंक्स में रोटेट होनी चाहिए, कितने कंट्री में ये मनी रोटेट होनी चाहिए, वो इशू डिपार्टमेंट मतलब नोट्स इशू करने की अथॉरिटी इशू डिपार्टमेंट को दी गई है। नेक्स्ट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, ये वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, सिक्योरिटी मेंटेन करना, पब्लिक के अकाउंट्स मेंटेन करना, दूसरे बैंक के जो आपने अकाउंट्स मेंटेन करने उनको देखना, ऑफिसेस कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वो सारे प्रॉपर बैंकिंग फंक्शंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उन्हें चेक करना। सो दिस इज बैंकिंग डिपार्टमेंट। मतलब बैंकिंग क्या होता है आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अकाउंट्स को चेक करते रहना, ये सब आपका बैंकिंग डिपार्टमेंट देखिए आरबीआई का। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ये सिर्फ क्या देखेगा, फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन को देखिए। फॉरेन एक्सचेंज की वजह से मेरी कंट्री में कितना मार्केट में एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ, कितना फ्लक्चुएट हुआ, वो चेक करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, मतलब हम कहाँ कहाँ डेवलपमेंट ला सकते हैं, वो आरबीआई का एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो देखते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ कहाँ ला सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज टू सेमी अर्बन एरियाज प्रोवाइड करना, टू अर्बन एरियाज, टू रूरल एरियाज, कहाँ कहाँ मैं अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, सो दैट लोगों को जो बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है जहाँ पर, वहां पर भी मिलना शुरू। सो दैट इज व्हाट टू से, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, मतलब जो एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हुई है वहां पर लाना, बैंकिंग फैसिलिटीज को लाकर डेवलपमेंट लाना। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल फिनेंस डिपार्टमेंट। इंडस्ट्रियल फिनेंस मीन इंडस्ट्रीज को कैसे क्रेडिट देना है, कितना लोन देना चाहिए, और कैसे उनको अपलिफ्ट मतलब डेवलप करना है, वो पूरा इंडस्ट्रियल फिनेंस डिपार्टमेंट नाम से देखो समझ में आ रहा है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, अब ये ना इनका डिपार्टमेंट क्या काम करता है, रिसर्च, कि हम बैंकिंग की पोजीशन अभी इंडिया में क्या है, और आगे चल के क्या प्रोग्रेस हमको इंडिया में लानी चाहिए अकॉर्डिंग टू अदर बैंक्स इन अदर कंट्रीज, जो जो वो इनोवेशन लानी चाहिए, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करे, फिनेंशियली हमें बेटर करे, बैंकिंग सर्विसेज जो हमारी हो वो क्वालिटी वाली बैंकिंग सर्विसेज हो, इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि कैसे हम अपनी सर्विसेज को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट होता है लीगल डिपार्टमेंट। अब ये सिर्फ लीगल मतलब ये जो लीगल एडवाइस होता है ना, जैसे आप किसी को लीगल एडवाइस देते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब लीगली, मतलब जो लॉज बने हुए ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो लॉज बने हुए हैं, वो लॉज को फॉलो करते हुए आप एडवाइस कर रहे हो, तो लीगल डिपार्टमेंट एडवाइस करता है हर बैंक को कि आपका सीआरआर इतना होना चाहिए, आपका एसएलआर इतना होना चाहिए, आप लिक्विडिटी इतना मेंटेन करें बैंक में, ठीक है, आपके पास लाइसेंस इशू करना है नहीं करना है, कितना कितने लाइसेंस कितने ब्रांचेस के लिए कैसे इशू करनी है। सो दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय व्हाट टू से लीगल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कंपनी, अब ये क्या देखते हैं, पूरा फाइनेंस, मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी रेगुलेट करते हैं और उनके डिपॉजिट्स और बिजनेस को भी रेगुलेट करते हैं, मतलब जितने हमारी कंपनी में डिपॉजिट्स आ रहे हैं उन्हें कैसे मैं अप्लाई, मतलब कैसे उनको मैं यूज करूँ, वो फंड्स को कौन सी ऐसी एरिया में प्रॉपरली लगाऊं जैसे लोगों का जो फाइनेंस दिया हुआ है बैंकिंग कंपनीज को, उसका नुकसान ना होना चाहिए, ठीक है। वो लोगों का पैसा है ना जो आप डिपॉजिट की फॉर्म में लेते हो, तो उसे कैसे हम यूज करें, ठीक है, उसे देखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से।
डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, अब ये पूरा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये चेक करते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, कितने इनकम्स हैं कितने एक्सपेंसेस हुए हमारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये पूरा अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं आरबीआई। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये सारी बैकएंड वाली चीजें देखते हैं, रिक्रूटमेंट देना, लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना लोगों को, और और सैलरीज देखना लोगों की, स्टाफ मेंबर्स की, कि कितना किस पर्सन को कितनी सैलरी जा रही है ना। और जिनको नहीं आइडिया नहीं है काम करने की उनको ट्रेनिंग देना। तो ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है ना, इट इज लुक्ड आफ्टर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बैकएंड जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। अब इंस्पेक्शन का मतलब ही होता है नजर रखना कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जब सुपरविजन हम करते हैं ना तब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, मतलब सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारे बैंक की सब रिपोर्ट्स बराबर हैं कि नहीं, मतलब आरबीआई की, सॉरी यहाँ पे आरबीआई की सारी रिपोर्ट्स बनाकर हमको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है। तो ये कौन रिपोर्ट बनाकर सबमिट करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। वही तो सब देख रहा है, एंड देन ही मेक्स अ प्रॉपर रिपोर्ट of what is done, what is to be done in the future, and what are the goals of the RBI. Next is secretarial department. Secretarial department का मतलब क्या होता है? It is broadly concerned with diverse matters. इसमें बहुत सारे matters होते हैं जो आपको देखने होते हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब आपके मार्केट में क्या रेट चल रहा है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सा खरीद रहे हैं, कौन से बैंक्स बेच रहे हैं, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन को चेक करना। फ्लोटिंग ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, मतलब गवर्नमेंट कितने लोन्स प्रोवाइड कर रही है और कितने बैंक्स ले रही है वो गवर्नमेंट लोन्स, उसे चेक करना। ट्रेजरी बिल्स इशू करना आरबीआई के नाम पे, ठीक है, आरबीआई के नाम पे दूसरे सिक्योरिटीज इशू करना जो बैंक खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा काम कौन देखता है? सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट। जैसे बैंक, जैसे कंपनी का सेक्रेटरी कैसे होता है, कंपनी सेक्रेटरी, आपने एसपी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th में। तो वैसे ही आरबीआई का, हाँ, वैसे ही आरबीआई का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट कहते हैं। वो ये काम ही ये करते हैं, सेक्रेटरी, जैसे कंपनी का सेक्रेटरी कैसे देखता है कंपनी के सारे काम करता है, वैसे ही आरबीआई के ये सारे काम सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। ओके, so our next heading is, wait, let me come to the next point. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, मतलब लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934। अगर एक बैंक को रेगुलेट करना है तो दोनों दोनों चाहिए आपको रेगुलेट। जब बैंक की रेगुलेशन अथॉरिटी आप देखते हैं ना, तो उसमें दो अथॉरिटीज आती है, बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। So we are done with that. Now, second part is Banking Ombudsman Scheme 1995. Now, what is this scheme about? Okay, so let's start with the next point, that is Banking Ombudsman Scheme 1995. Now, what this is Ombudsman? See, very important concept. The concept of ombudsman has gained importance in many countries like UK, Australia, New Zealand. अभी तो इंडिया में भी है. In India too, RBI has introduced a similar scheme of ombudsman from June 14, 1995. Date is important. You have to remember the date also. 14 June 1995 to protect. Why RBI has introduced ombudsman scheme? To protect the interest of the customers, so that the customer's interest is protected, and as well as to redress their grievances, means to come, so that, I mean, this scheme was invented so that if any customers have their complaints related to the banking services, whom they will speak to. If they have a, suppose if they have a complaint regarding ATM, suppose they have a complaint regarding their debit card, credit card, or suppose they have their complaint regarding banking official,
कोई बैंक का ऑफिसर है जो उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और उनका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, चेकबुक प्रोवाइड नहीं कर रहा है या एटीएम टाइम से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एटीएम का कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉट एवर, जो भी सर्विसेज आपको बैंकिंग ऑफिशियल्स देते हैं वो टाइमली प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो अभी आपको कंप्लेन है, अगर आप कंप्लेन होती है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उनको कंप्लेन रजिस्टर करते हैं ना आप अपनी। तो रिड्रेस द ग्रीवियंसेस का मतलब यही होता है, कस्टमर्स को अगर कुछ कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट कहाँ लेकर जाएंगे, तो उनके लिए निकाला गया ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब होता है ये वो डिपार्टमेंट होगा बैंकिंग का जहां पर आप अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करते हो, उनको बताते हो, और फिर वो बताने के बाद वो प्रोसेस करते हैं। ये डिपार्टमेंट उसको कंप्लेंट्स को प्रोसेस करता है, चेक करता है क्यों ये हुआ, और फिर आपकी कंप्लेंट की जो जो प्रॉब्लम थी, जो जिसकी वजह से कंप्लेंट आया, वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ओम्बड्समैन स्कीम का जो आरबीआई ने इन्वेंट किया था? ओके, सो मेन पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, मतलब जो बैंकिंग कस्टमर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। इंटरेस्ट मतलब वो नहीं जो आप अर्न करते हो, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे आपके बेनिफिट्स, मतलब आपको कोई नुकसान ना हो, कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, कस्टमर के फायदे में हित में काम चले, ऐसा बैंकिंग का मतलब मोटो है। तो ऐसा कुछ नहीं हो कि कस्टमर्स को लूटा जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, मतलब आप ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, आपकी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करना मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिसकी वजह से कंप्लेंट आई थी। इंडीड मतलब बोलते हैं ना वाकई में, इंडीड इट इज अ लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग का, इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग में तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बोलते हैं ना लैंडमार्क, इट्स लाइक एन अचीवमेंट कि आपने ये ओम्बड्समैन स्कीम को जनरेट किया। किसने जनरेट किया? ये आरबीआई ने। इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो इनका ऑब्जेक्ट है टू रिसॉल्व, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सेटल करना। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो कंप्लेंट्स हैं, जो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स है रिलेटिंग टू द बैंकिंग सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये डिपार्टमेंट का काम ही है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स, अच्छा ये तो समझ गए बैंकिंग की सर्विसेज से रिलेटेड अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड, टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझो किसी बैंक का दूसरे बैंक के साथ, किसी बैंक का दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, या किसी बैंक का किसी और कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट मतलब कोई प्रॉब्लम चल रहा है, देखो, बिटवीन वन बैंक एंड अनदर बैंक, through the process of conciliation, mediation, arbitration, ये प्रोसेस है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये मतलब सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व नहीं करते हैं ये लोग, रजिस्टर करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं। ये जो दो बैंक्स के बीच में या बैंक और किसी कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। सेकंड ये हुआ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो कंप्लेंट आप ले रहे हो ना कस्टमर से, उन्हें आप जब रिड्रेस करते हो, सॉल्व करते हो, तो जो सॉल्व करने के पीछे जो खर्चा होता है ना वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। और उनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैंने कंप्लेंट रजिस्टर आज की है और सॉल्व हो रही है 2 महीने के बाद, तो कितना टाइम है बताओ, 2 महीना कितना टाइम हो जाएगा ना। सो इट शुड नॉट बी दैट, मतलब आपका एटलीस्ट विद इन 1 वीक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इतना स्पीड होनी चाहिए वो उस मैकेनिज्म की, सिस्टम की अच्छी स्पीड होनी चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आप जब किसी की कंप्लेन, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो खर्चा होता है ना वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो आपका मैकेनिज्म मतलब जो सिस्टम है ना, उसमें खर्चा कम और स्पीड अच्छा, ठीक है ना। एक्सपीडियस मतलब स्पीड होती है। टू मेक अवेलेबल एंड एक्सपीडियस, लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने मैंने मीनिंग बताई थी तो वो उससे मीनिंग लिख दी, स्पीड। टू मेक अवेलेबल एंड एक्सपीडियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, किसके लिए? टू बैंकिंग कस्टमर एज वेल एज बैंकर देमसेल्फ, बैंक्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, ये दोनों के लिए अवेलेबल है।
कौन, अच्छा अब बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो मैन मतलब एक कोई एक्सपर्ट होना चाहिए ना इसके लिए। अब एक ये वन मैन शो नहीं है, ये पूरी टीम होती है, ओम्बड्समैन की पूरी टीम होती है। अब ये कौन अपॉइंट करता है, इसमें एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने का काम किसका है, आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर पर्सन एज बैंकिंग ओम्बड्समैन, या तो एक से ज्यादा, जितने भी एक्सपर्ट्स की नीड होगी फॉर बैंकिंग ओम्बड्समैन, वो कौन अपॉइंट करता है उन्हें, आरबीआई, टू कैरी आउट द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू हिम, मतलब उनको वो काम दिया जाता है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इस स्कीम के अंडर में। द बैंकिंग ओम्बड्समैन मस्ट बी द राइट ऑफ हाई स्टैंडिंग इन लीगल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आप पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो ना इस पोजीशन के लिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए, उनको इस फील्ड का बहुत अच्छा हाई स्टैंडिंग मतलब नॉलेज होना चाहिए, लीगल मतलब लीगल नॉलेज, लॉज लॉज से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। जनरली ही विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जनरली बैंकिंग ओम्बड्समैन जो अपॉइंट होता है वो कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, 3 years। 3 years, लेकिन इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर उसका काम आपको अच्छा लगेगा तो आरबीआई उसका पीरियड एक्सटेंड भी कर सकती है फॉर मोर 2 years, for 2 years more. He will be eligible for extension for a further of 2 years, subject to overall age limit of 65 years. Common sense है, 65 के बाद तो रिटायर हो जाएंगे ना वो, तो 65 ईयर्स तक ही आप अपॉइंट हो सकते हो, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब पावर्स एंड ड्यूटीज देखते हैं। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। कुछ जनरल पावर्स भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी होते हैं। जनरल मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, स्पेसिफिक मीन्स आपको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं वो पावर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, अब जनरल में देखो, टू रिसीव कंप्लेंट्स, आप सबकी कंप्लेंट्स लेते हो किससे रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज, ये तो जनरल पावर हो गया ना, ये तो मेन उनका मोटो है, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करना, कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करना। टू कंसिडर सच कंप्लेंट्स एंड फैसिलिटेट देयर सेटिस्फैक्शन, मतलब उनको सॉल्व करना। ठीक है, उन कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हुई है ना उनमें सॉल्व करना। और थर्ड है, द ओम्बड्समैन हैज ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट के भी पावर्स है, मतलब जजमेंट के जो पावर्स होते हैं ना वो भी पावर्स है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पावर्स एंड ड्यूटीज। व्हाट आर द स्पेसिफिक मींस, स्पेसिफिकली जो पावर्स दिए जाते हैं स्पेसिफिक केसेस में। अब वो कौन से केसेस हैं, देखो कौन सी सर्विसेज है, नॉन पेमेंट और डिले पेमेंट ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। मतलब समझो आपकी है ना, आपकी आपकी जो पेमेंट है चेक की, ड्राफ्ट्स की, बिल्स की, वो अभी तक बैंक आपको पे ही नहीं कर रही है। कस्टमर ने पे कर दिया लेकिन आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही है, आपके अकाउंट में पहुंच नहीं रहा पैसा। नॉन इशू ऑफ द ड्राफ्ट्स टू द कस्टमर्स एज वेल एज द आउटसाइडर्स, मतलब आप है ना ड्राफ्ट तो बनवा कर आए हो, डिमांड ड्राफ्ट जैसे होता है ना, हम पढ़ते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, तो ये आप ड्राफ्ट बनवा कर आए हो बैंक से, लेकिन आप, लेकिन सामने वाले को पेमेंट तो हो ही नहीं रही है, इशू तो हो ही नहीं रहा, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। नॉन एडहेरेंस, देखो एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना। अब मैं आपको बोलूंगी ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो फॉलो का मतलब होता है एडहेरेंस, तो नॉन एडहेरेंस का मतलब होता है नॉन फॉलोइंग। अगर आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, समझो अभी एक बैंक है जो ना, बैंकिंग का टाइमिंग क्या होता है बैंक का, 10 to 5, ठीक है 10 to 5 एग्जाम्पल, तो वो ना अपना बैंक 4 o'clock ही बंद कर देते हैं, 1 घंटा पहले ही। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, 1 घंटे का वो जो उनका डिले हो रहा है, कस्टमर्स का नुकसान है ना उसमें, कल को मुझे कैश डिपॉजिट करनी हो तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स बाय द ब्रांचेस, अगर कोई ब्रांच है जो आप वर्किंग आवर्स से पहले बंद कर देती है, मतलब फॉलो नहीं कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, failure to R guarantee or letter of credit commitments by the bankers. See, next क्या कर रहे थे हम, claims ना, failure,
failure to R guarantee or letter of credit commitments by bankers means R guarantee आपको किसी बैंक ने आपको गारंटी नहीं दिया या फिर गारंटी देकर उस गारंटी को फुलफिल नहीं किया, लेटर ऑफ क्रेडिट कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, तो ऐसा कोई भी कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड या फिर फ्रॉडुलेंट, जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, किसी मतलब मैंने तो डिपॉजिट नहीं किया था, मेरे मेरे डिपॉजिट वाले अकाउंट से मैंने तो विड्रॉ नहीं किया था, किसी और ने विड्रॉ कर दिया, मतलब ये फ्रॉड फ्रॉड हुआ मेरे अकाउंट में, अमाउंट मैंने विड्रॉ नहीं किया बट किसी और ने कर लिया। ठीक, तो ऐसी कंप्लेंट मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ यहाँ पर। कंप्लेंट रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स मतलब डिले इन कलेक्शन, कभी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कलेक्शन नहीं हो रही है, बैंक मुझे टाइम पे डिपॉजिट का अमाउंट विड्रॉ करने नहीं दे रही है, या फिर एटीएम नहीं चल रहा है, या बहुत टाइम से मेरा बैंक के पास पैसा अटका हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स कैन बी रजिस्टर्ड। Complaints from Indian exporters regarding delay in receipts of export proceeds, handling of export bills, collection of bills, etc. अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ना तो बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, तब जाके ये सारा प्रोसीजर होता है, तो बैंक इन्वॉल्व होती है ना इसमें। तो अगर इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं हो रहा है, मतलब आगे एक्सपोर्ट पहुंच नहीं रहा है, गुड्स पहुंच नहीं रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट बिल्स, या फिर कलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहा है टाइम से, तो ये सब चीजें बैंक को देखनी पड़ती है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं गुड्स को। तो ये नहीं हो रहा है तब भी आप उस कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जनरल एंड स्पेसिफिक ऐसे करके हमने दो क्या किए, ड्यूटीज, ठीक है, पावर्स एंड ड्यूटीज। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you guys want break because we are starting with new concept, that is prudential norms. Prudential norms के बाद IRDA. So two concepts are there, but उसमें time लगेगा, I mean half an hour more. So you guys want break or we can continue? You want break for 5 minutes or we can continue? Yes, Yes, ma'am. 5 minutes. 5 minutes break. Okay. So we will continue after 5 minutes. Let the meeting be on. Okay. You guys take your break. Okay. Okay. Shall we begin? Is everybody here? Yes, ma'am. Okay. See, the next concept is prudential norms. Now, what are these norms? Means always remember guidelines. Norms means rules that are stated as per the guide. I mean that are stated as per RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. So prudential norms are the guidelines or rules on income recognition, asset classification, and provision regarding advances. Now, what is provision regarding advances? Non-performing assets. See, first let me tell you what is performing assets, and then you will be able to understand non-performing assets. Suppose I've given you a loan. A bank has given you a loan, a huge amount of loan, and the loan period is 5 years. Every year you have to pay principal amount and interest to the bank. Every year you are paying principal amount and interest amount to the bank within due date, on time. So on time, bank is generating income on time. That means no delay is there in the payments. No delay is there in receiving income. See, you are paying principal amount and interest to the bank. It is expense for you, but income for bank, because that interest that you are paying to bank on your loan is income to the bank. That interest is income to the bank. And when income is generated on time, it is known as performing asset. Performing means it is performing very nicely. Performing asset. What is the bank's biggest asset?
What is the bank's biggest asset? Biggest asset of the bank is advances, loans. Loans that banks, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था, बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? जब बैंक किसी को लोन देती है। क्यों? क्योंकि उसमें से बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, इनकम। इंटरेस्ट के नाम पे आपको इनकम मिलती है बैंक्स को। तो यहाँ पर जो जो आपको इनकम जनरेट हो रही है ना, वो एसेट्स की वजह से हो रही है। तो जो वो एसेट है ना, मेरी लोन जो मैंने आपको दिया हुआ है, मैं बैंक हूँ सपोज, और मैंने अगर आपको लोन दिया, तो आपके लिए वो बोरोड फंड है, आपके लिए लाइबिलिटी, आपको चुकाना है, पर मेरे लिए तो मेरी एसेट है ना। ये लोन का पैसा मैंने आपको दिया है, कल मुझे ये वापस मिलेगा, इट इज माई एसेट। And if this asset is performing very nicely, performing good, performing in a fair enough way, तो उसको हम बोलते परफॉर्मिंग एसेट्स। जब वो इनकम जनरेट होती है ना टाइम पे उस एसेट में से, उसे कहते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। That means the income when generated on time from assets like advances and loans, it becomes performing assets. It is known as performing assets. तो non performing क्या होती है? When income ceases to generate from such assets is known as non performing asset. When income ceases to generate, ceases का मतलब होता है stop हो जाना। मतलब आपको, आपने जो लोन्स दिए थे ना पब्लिक को, वो उस लोन में से कुछ पब्लिक ऐसी है जो आपको है ना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की ना टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है। तो एक टाइम तक आप देखोगे, उनको वार्निंग दोगे, फिर दूसरे टाइम फिर वार्निंग दोगे उनको, और एक टाइम तक आप समझ जाओगे कि अब यहाँ से पैसा निकालना बिल्कुल मुश्किल हो गया। जैसे नीरव मोदी का केस था, है ना? तो वो नीरव मोदी का केस जैसे था, वो तो अभी जब वो नहीं दे रहा था, जब वो कैश प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहा था, तब देखो धीरे धीरे परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग पे जाते हैं ना। अब बैंक सोचेगी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कितने टाइम पीरियड में एक परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? 90 डेज में। 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने 90 डेज तक देखा, 90 डेज क्या होता है? 3 मंथ्स। 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज नो। तो 90 डेज कितने होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। तो यानी कि एक परफॉर्मिंग एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट होने के लिए कितने टाइम पीरियड तक देखा जाता है उसको? 90 डेज तक। 90 डेज के बाद एक बैंक बोलेगी कि ये मेरी जो परफॉर्मिंग एसेट थी ना, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गई, मतलब इस एसेट में से मुझे इनकम जनरेट नहीं हो रही है। आया समझ में दोनों के बीच में डिफरेंस, परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग Yes, एसेट? ma'am. हाँ। तो Yes, अब, ma'am. हाँ, अब जो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना, उन देखो, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया वो, तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब अब उसमें से मुझे जो इनकम जनरेट होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही है। जो इनकम है वो ब्लॉक हो गई, मेरी बैंक की इनकम ब्लॉक हो गई, इसीलिए वो एसेट को मैं नॉन परफॉर्मिंग बोलती हूँ। नॉन परफॉर्मिंग, वो मुझे परफॉर्म नहीं करके दे रही है, वो एसेट्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, इनकम जनरेट नहीं कर रही है। तो ठीक है, मैंने 90 डेज तक, देखो हर चीज में 90 डेज लिखा होगा, लगभग लगभग हर चीज में 90 डेज लिखा हुआ रहेगा। आप देखो टर्म लोन, टर्म लोन देखो, पहला पहला टर्म लोन होता है जब आप किसी को एक पीरियड, टाइम पीरियड, फिक्स पीरियड के लिए लोन देते हो, उसे कहते हैं टर्म लोन। उसका ना ओवर ड्यू 90 डेज तक चेक किया जाता है। मतलब अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, उसे कहते हैं ओवर ड्यू। ड्यू डेट आगे चली गई, ओवर ड्यू मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, किस चीज का? इंटरेस्ट का भी पेमेंट नहीं किया, इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट नहीं किया, दोनों चीजें, ये देखो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का ओवर ड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। ऐसे करके सीसी ओडी ये सब दिया हुआ है, देखो 90 डेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, 90 डेज। बिल्स, बिल्स डिस्काउंटेड, आपने ना, आपने कस्टमर, आप बैंक हो, आपने कस्टमर के बिल्स डिस्काउंट किए थे, मतलब बिल्स परचेज करके उनको कैश दे दी थी, लेकिन आपने जो बिल्स परचेज किए हैं उसकी वैलिड, समझो वो बिल 3 मंथ्स का है सपोज, और 3 मंथ्स के अंदर आपको वो पैसा, मतलब 3 मंथ्स के बाद आप कस्टमर के पास गए, अब आपको वो कस्टमर पे ही नहीं कर रहे, तो ऐसे कर करके कितनी बार आप गए हो? 90 डेज तक गए,
90 डेज तक आपने वेट किया कि कस्टमर अब पे करेगा 3 मंथ्स तक, लेकिन वो नहीं पे कर रहे, तो 90 डेज के बाद आप अनाउंस कर दोगे, मतलब वो बोलते हैं ना, हमने हमने सोच ही लिया कि अब तो पैसा मिलना ही नहीं है, तो उसे कहते हैं 90 डेज तक हमने वेट किया था कि ये परफॉर्मिंग एसेट है कि शायद मिल जाए, लेकिन 90 डेज के बाद आपने एसेट को कन्वर्ट कर दिया नॉन परफॉर्मिंग में, क्योंकि उसका ओवर ड्यू हो गया ना, 90 डेज को क्रॉस कर गया। ठीक है ना, लगभग सब में आप 90 डेज ही देखोगे। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन लोन क्रॉप, ये क्रॉप लोन होता है, मतलब एग्रीकल्चरल फार्मर्स को ये दिया जाता है, ये वन क्रॉप सीजन के लिए दिया जाता है, मतलब जो एक ही बार सीजन में एक ही बार जो कुछ आप मतलब जो क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए जो क्रॉप लोन दिया जाता है, तो ये वन क्रॉप सीजन तक का टाइम रखा जाता है इसका ओवरड्यू। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में भी अगर बैंकिंग बैंकिंग कंपनीज इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी 90 डेज तक का टाइम पीरियड होता है परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में बैंकिंग इन्वॉल्व है, तो उसमें भी 90 डेज तक आप वेट करोगे। 90 डेज के बाद आप कह सकते हो कि अब मुझे इनकम जनरेट नहीं हो रही है। सो 90 days is very important. When can we convert performing asset into non-performing assets? If it is overdue for 90 days, for more than 90 days. अगर उसका अमाउंट मुझे overdue हो गया, नहीं मिला है for more than 90 days, ठीक है, मतलब 3 months। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी ना डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, अगर आपको दिख रहा है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सबस्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट्स, फिर लॉस एसेट्स। बड़े ध्यान से सुनो। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या किया है उन्होंने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासिफाई किया, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लासिफिकेशन किया है। क्यों क्लासिफिकेशन किया मैं आपको बताती हूँ, टाइम पीरियड को देखती हूँ। देखो, सबसे पहले तो वो परफॉर्मिंग एसेट थी, इनकम जनरेट हो रही थी। अब इनकम जनरेट होना स्टॉप हो गई, तो मैंने 90 डेज तक वेट किया, 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद मैंने अनाउंस कर दिया कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई। अब ध्यान से सुनना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होकर उसको 12 मंथ्स होने को आए हैं। आप समझ रहे हैं, पहले तो 3 मंथ्स हो गए ना, उसके बाद मैंने बोला ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब से मैंने इसको अनाउंस किया था ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है, उसको भी 12 मंथ्स हो गए हैं, इक्वल टू 12 मंथ्स और मे बी लेस देन, कुछ मंथ्स हुए हैं या 12 मंथ्स हुए हैं, इक्वल टू 12 मंथ्स और मे बी लेस देन 12 मंथ्स, मे बी 8 मंथ्स, मे बी 9 मंथ्स और मे बी 12 मंथ्स, मतलब लगभग 1 ईयर हो गया जो मैंने कहा था ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, कन्वर्ट कर चुकी हूँ मैं नॉन परफॉर्मिंग में, और उसको भी 12 मंथ्स हो गए, तो हम उससे बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सब स्टैंडर्ड एसेट। Substandard asset. यस, यस, सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोलेंगे, जब नॉन परफॉर्मिंग को भी 12 मंथ्स हो गए। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, डाउटफुल एसेट। अब इसे डाउटफुल नाम से देखो लग रहा है डाउटफुल, अब तो बिल्कुल पैसा मिलना ही नहीं है ऐसे लग रहा है, डाउटफुल है, फुल हमको डाउट है कि ये पैसा अभी डूब गया बैंक का, ठीक है। डाउटफुल, ये डाउटफुल कब होता है, इसको डाउटफुल की कैटेगरी में कब लाया जाता है, जब सब स्टैंडर्ड एसेट्स को भी 12 मंथ्स पूरे हो गए। ये देखो, एन एसेट विच हैज रिमेन्ड सबस्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जब नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट हुआ उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग को भी 12 मंथ्स हो गए, तो सब स्टैंडर्ड बन गया वो। अब सब स्टैंडर्ड होते हुए भी वो 12 मंथ्स हो गए, तो डाउटफुल बन गया। मतलब कितना टाइम जा रहा है, आप देखो ना, टाइम पे डिपेंड है। इतना टाइम आपका 3 मंथ्स आपने पहले वेट किया, उसके बाद आपने 1 ईयर और वेट किया, फिर आप 1 ईयर और वेट कर रहे हैं, अब भी वैसा नहीं आ रहा है आपके पास। 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर होता है, तो आप अब तक उसमें से इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो अब क्या होगी, अब तो डाउटफुल ही है, बिल्कुल डाउटफुल है, ठीक है, कि पैसा तो डूबने ही वाला है। डाउटफुल बोलते हैं ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वो डेट होने वाला है, नुकसान होने वाला है। अब लास्ट होता है लॉस एसेट। नीरव मोदी वाला केस था ना, देखो उन्होंने पहले उन्होंने पता नॉन परफॉर्मिंग हो गया ये जनरेट ही नहीं हो रही है यहाँ से इनकम, कितनी भी वार्निंग दे दो, 3 मंथ्स हो गए लेकिन इनकम आ ही नहीं रही है, उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड हुआ रहेगा,
फिर डाउटफुल हुआ रहेगा कि उनको डाउट हुआ रहेगा कि अब ये देगा ही नहीं, फिर वो भाग गया। लॉस एसेट, लॉस मतलब फाइनली मतलब हो गया, आपका नुकसान हो गया, अनाउंस कर दिया कि आपने अपनी नीरव मोदी ने पैसा खा लिया, है ना, मतलब पूरा पैसा खा गया बैंक का, जितना उसने लोन लिया था वो खा, आई मीन ही इज नॉट रिटर्निंग अवे, वो कुछ भी नहीं भरने को रेडी है, एंड ही रैन अवे। समझ आया आपको? तो ये लॉस एसेट क्या होती है? एन एसेट व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सच बट हैज रिमेन टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिटर्न ऑफ इज कॉल्ड एज लॉस एसेट। मतलब आपने अभी तक बुक्स में तो नहीं दिखा है, लेकिन आपको पता है कि इसमें से अभी कुछ भी रिकवर नहीं होगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. हाँ, ये वो लोन्स होते हैं जो आप बैंक जब देती है और उसमें से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट जनरेट नहीं हो रहा है टाइम पे, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड क्या होते हैं? परफॉर्मिंग से नॉन परफॉर्मिंग में आने के लिए बैंक कितना वेट करती है? 90 डेज। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी हमने क्लासिफिकेशन देखी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, अब वो आपको मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं करने, आप सिर्फ एक बार देख लीजिए। ये प्रोविजंस होते हैं। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट्स में भी कैटेगरीज होती हैं। ये देखो सबस्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, सबस्टैंडर्ड एसेट्स उसका 15% होता है अगर सिक्योर्ड है तो। ईसीजीसी कवर से सिक्योर्ड है। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है मैं आपको बताऊं उसका रीजन। इसके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। किसमें? जब हम सेम 5 करेंगे ना, पीवाई, जब आप 3rd ईयर में आ जाएंगे तब आपको सेम 5 में एफआरए सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और उसमें ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, ईसीजीसी कवर, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, 15%, 0.4% ये आप देख रहे हो सब, जो भी ये सब आपको प्रैक्टिकली करना है वहाँ पर। सम्स है इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब मतलब आपको सिर्फ थोड़ा क्लासिफिकेशन तक ध्यान देना है। मेरे बोलने का मतलब है अब आपको थ्योरेटिकली थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखनी है कि नॉन परफॉर्मिंग क्या होता है, परफॉर्मिंग क्या होता है, और क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। परफॉर्मिंग की तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, परफॉर्मिंग एसेट दैट इज परफॉर्मिंग, उसमें से इनकम जनरेट हो रही है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के 3 पार्ट्स हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। फिर डाउटफुल को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अप टू 1 ईयर, अगर वो अप टू 1 ईयर है, फिर 1 to 3 ईयर्स है, या फिर मोर देन 3 ईयर्स है, ठीक है। तो ये उसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, प्रोविजंस है, मतलब आप कितना नुकसान को पहले से ही सोच रहे हो कि होगा। 25% आपने पहले से ही साइड कर दिया कि इतना नुकसान होगा। यहाँ पर 40% आपने बोल दिया कि मतलब अनाउंस कर दिया या बुक्स में मेंटेन कर दिया 1 to 3 ईयर्स, आरडीडी दिखाता ना, बुक्स में दिखाता ना आरडीडी, बस ये वही है Yes, ma'am. प्रोविजनिंग नॉर्म्स मतलब आरडीडी। यानी कि आपने पहले से ही बुक्स में दिखा दिया कि ये जो डाउटफुल एसेट है ना, डाउटफुल कैटेगरी में जो आ गए ना एसेट्स, वो 1 to 3 ईयर्स हो गए, मतलब 1 to 3 ईयर्स के बीच में आ चुका है। 2 ईयर्स डाउटफुल होके भी 2 ईयर्स खत्म हो गए उसको। तो अब मैंने प्रोविजनिंग नॉर्म, प्रोविजन मतलब आरडीडी मतलब रिजर्व मैंने करके रखा है कि 40% मुझे इसमें से नहीं मिलेगा। और अगर वो 3 ईयर्स क्रॉस कर गया, डाउटफुल होके भी वो 3 ईयर्स से ज्यादा हो गए, मोर देन 3 ईयर्स, तो 100% मतलब अभी मिलने वाला ही नहीं है। अब तो क्या समझू, मिलेगा ही नहीं। एज गुड एज लॉस एसेट मतलब डाउटफुल अगर 3 ईयर्स से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो एज गुड एज लॉस एसेट्स हो जाते हैं। और लॉस एसेट्स का भी कितना होता है? 100%। मतलब नुकसान कितना होगा आपका? आपने प्रोविजन कितना बुक्स में दिखाया है, देखो, परमिटेड टू रिमेन इन बुक्स फॉर एनी रीजन 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड मतलब आप बुक्स में जो दिखाते हो ना रिजर्व फॉर बैड डेट्स, वो आप 100% दिखा सकते हो। कि दिखा सकते हो मतलब कि आप बताओ, आप क्या बताएंगे अपने बुक्स में, दिखाएंगे क्या कि 100% ये मेरा नुकसान हो गया, इसमें से अभी मुझे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कि कस्टमर पैसा लेके भाग गया, लाइक दैट वे, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद है, अब ये ना आपका हो गया क्या बोलते हैं बैंकिंग का।
अब हम आते हैं इंश्योरेंस पे। आज हमने पहले क्या पढ़ा, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग। अब हम पढ़ रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये हम पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे रिपीट किया हुआ, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, एक IRDA एक्ट 1999 और एक इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आपको पहले करवा चुकी हूँ। ये देखो, इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ये सबसे पहला लेजिस्लेशन बनाया था। क्यों बनाया था? जैसे इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लॉज को बनाकर उनकी रेगुलेशन पे वर्किंग की जा रही थी। तो सबसे पहला रेगुलेटरी जो लेजिस्लेशन बनाया गया था वो क्या था? इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसमें वो लॉज बनाए गए थे, देखो, टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। मतलब जितने भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बनाए गए थे। द एक्ट केम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1939, जिसमें कितने सेक्शंस थे? 120 सेक्शंस थे, 8 शेड्यूल्स के साथ। अभी तो काफी सारे हैं और अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी के वर्किंग्स को देखती है, रजिस्ट्रेशन को देखती है ये एक्ट, मेंटेनेंस को देखती है, सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब इस एक्ट के अंडर में जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो लिखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब आप कहाँ, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने फंड्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने फंड्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकती है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। परमिसेबल लिमिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, आप एज एन इंश्योरेंस कंपनी आप कितने खर्चे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। अप्रूवल ऑफ प्रीमियम रेट्स, मतलब जब आप लोगों को पॉलिसीज बेचते हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज, तब उनसे प्रीमियम कितना चार्ज करते हैं, उसकी लिमिट, उसकी अप्रूवल आपको इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है IRDA एक्ट 1999। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे हमने बैंकिंग में पढ़ा ना, 2 अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक होता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा होता है RBI एक्ट 1934। यस, वैसे ही होता है आपका इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एक्ट 1938 और दूसरा होता है IRDA एक्ट 1999। अब IRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से समझ में आ रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनीज के रेगुलेशन को देखते हैं, वर्किंग को देखते हैं और उनकी डेवलपमेंट को देखते हैं। मतलब उनकी डेवलपमेंट कैसे, कंपनीज की डेवलपमेंट कैसे हो, ये वो अथॉरिटी है। मतलब ये डेवलपमेंट को भी देखती है और उनके काम रेगुलेशन को भी देखेंगे, ऑपरेशन। ओके, इनके पावर्स क्या हैं देखते हैं। मतलब मेन इनका मोटो होता है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ लाना, उनमें उसको प्रमोट करना, इंश्योरेंस कंपनीज को, और उनके वर्किंग्स को रेगुलेट करना। इनका मेन मोटो ये होता है IRDA का। इनके ना कुछ पावर्स एंड फंक्शंस भी दिए हुए हैं, लेट अस क्विकली सी दैट। एंड इसके बाद आई थिंक हमारा चैप्टर वाइंड अप है, ये आई थिंक हमारा लास्ट पार्ट है। लेट अस जस्ट सी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। सबसे पहला, जितने भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं IRDA के, वो सेक्शन 14 में दिए गए हैं। किसका सेक्शन 14? IRDA एक्ट 1999। क्या क्या पावर्स हैं IRDA को? इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कंपनी, जो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, लाइसेंस लगेगा। वो आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? IRDA। इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। अगर आप बैंकिंग कंपनी ओपन कर रहे हैं तो RBI देता है लाइसेंस, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगता है ना, वो कौन देता है आपको? IRDA। प्रमोटिंग द एफिशिएंसी इन कंडक्टिंग द बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो एफिशिएंटली आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, IRDA आपको उसके लिए प्रमोट करता है कि आप अपना बिजनेस एफिशिएंटली करें। स्पेसिफाई द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज
और सर्वेयर, सर्वेयर मतलब जो आपको बिजनेस करके देखता है, एंड लॉस एसेसर्स एंड एजेंट्स, जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए? जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं ना, वो सर्वेयर्स होते हैं, सर्वे करके देते हैं, रिसर्च करके देते हैं आपको, और लोगों तक पहुंचा कर देते हैं, आपकी पॉलिसीज बेच कर देते हैं, तो उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो किसमें स्टेटेड है? IRDA एक्ट। मतलब IRDA एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्वेयर, एजेंट्स और ब्रोकर्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी काम करे। रेगुलेटिंग द प्रीमियम रेट्स एंड टर्म्स, मतलब प्रीमियम के कितने रेट्स होने चाहिए, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी रेगुलेट करता है IRDA एक्ट। रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आप एज एन इंश्योरेंस कंपनी अपने फंड्स को कहाँ रेगुलेट करते हो, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करते हो, फंड्स को कहाँ अप्लाई करते हो, यूज करते हो, वो भी IRDA एक्ट 1999 के सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। स्पेसिफाइंग requisite qualifications and practical training for intermediaries and agents, आपकी कंपनी के जो एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनको जो ट्रेनिंग देनी है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कितनी होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए, वो सारे सेक्शन 14 में लिखे हुए हैं। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, सबसे मेन मोटो तो यही है IRDA का कि पॉलिसी होल्डर्स के हित में काम करना है, उनके बेनिफिट के लिए काम करना है, मतलब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इन द मैटर्स रिलेटेड टू नॉमिनेशन, अगर आप किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो तो उसमें कोई चीटिंग ना हो। क्लेम सेटलमेंट, मतलब कभी कुछ नुकसान हो गया, जैसे कार डैमेज हो गई, आपने कार का इंश्योरेंस लिया था, अब कंपनी है ना रीजंस बना रही है आपको इंस्टॉलमेंट, सॉरी आपको पेमेंट दे नहीं रही है, जबकि वाकई में कार डैमेज हुई है, तो आपको क्लेम सेटल होना चाहिए ना, आपको तो पैसा मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए उसका, पॉलिसी का। रिफंड नहीं बोल सकते हैं इसको, क्लेम सेटलमेंट बोलते हैं। तो वो नहीं हो रहा है, तो IRDA एक्ट 1999 में लिखा हुआ है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि कस्टमर्स का क्लेम सेटल करना है, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती, नहीं तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है। ठीक है। सरेंडर वैल्यू, मतलब सरेंडर, आप ना बीच में अपनी पॉलिसी को बंद करें, आपके पास प्रीमियम भरने का अभी पैसा ही नहीं है, अब 3-4 साल हो गए पॉलिसी को, अब आपने बीच में पॉलिसी बंद करने का फैसला ले लिया, तो ना जब कंपनी क्या करती है, जब आपने सरेंडर किया ना, तो कंपनी का काम है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने ईयर्स तक की पॉलिसी चली है ना, उतना तो एटलीस्ट आपको वैल्यू भर के दे, उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। ये लाइफ इंश्योरेंस में होता है, ये किस में होता है? लाइफ इंश्योरेंस में होता है सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट होता है आपका असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, मतलब आपने किसी को पॉलिसी अगर असाइन करी है तो उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी IRDA एक्ट 1999 में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्रोफेशनली काम करना चाहिए, इट शुड रेगुलेट प्रोफेशनली, तो वो भी इंश्योरेंस एक्ट 1999 में, IRDA एक्ट 1999 में स्पेसिफाई किया हुआ है। लेवी फीस, कितना फीस आप लेवी कर सकते हो, लेवी मतलब चार्ज, लेविंग मतलब चार्ज, चार्जिंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस स्टेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब आप कस्टमर से कितना फीस चार्ज कर सकते हैं, इट इज स्टेटेड अंडर दिस एक्ट। रेगुलेटिंग द सॉल्वेंसी मार्जिन, सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, मतलब हर, जैसे बैंकिंग कंपनी को कैसे CRR और SLR के फॉर्म में लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, सेम IRDA को, सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज को भी सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कुछ कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है, सो दैट कभी कोई सडन एक्सपेंसेस आ गए तो वो मैं पे कर सकूं, कभी किसी का नुकसान हो गया तो मैं उतना अमाउंट पे कर सकूं जितना क्लेम में सेटल होना चाहिए। ओके, सो सॉल्वेंसी मार्जिन भी डिसाइड कौन करता है? IRDA एक्ट 1999। कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरी निकालना, इन्वेस्टिगेशन करना इंश्योरेंस कंपनी की, इट इज ऑल्सो एज पर द स्पेसिफिकेशन रिटन इन IRDA एक्ट 1999।
कंपनीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उनके रेट्स, उनके एडवांटेजेस, टर्म्स, कंडीशंस, मतलब जो भी वो पॉलिसीज आपको बेच रहे हैं उनके रेट्स को रेगुलेट करना, सो दैट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स इज प्रोटेक्टेड। मतलब कस्टमर्स को लूटा नहीं जा रहा है, ऐसे वे में कंट्रोल करना। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सो दैट किसी को डिसएडवांटेज नहीं हो जाए, किसी को इंश्योरेंस बिजनेस की वजह से कस्टमर्स का नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड। मतलब IRD एक्ट 1999 में स्पेसिफाई किया गया है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन से फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, वो भी हम सेम 5 में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका पूरा। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। टैरिफ एडवाइजरी कमिटी मतलब जो टैरिफ, जो लिमिट्स लगाती है कि इतने रेट्स होने चाहिए, इतने रेट्स नहीं होने चाहिए, इतना प्रीमियम होना चाहिए, इतना इस इंश्योरेंस पे इतना प्रीमियम नहीं होना चाहिए। टैरिफ का मतलब होता है लिमिट्स लगाना, एक तरीके की लिमिट लगा देना कि इससे ज्यादा आप कस्टमर से प्रीमियम नहीं ले सकते। ठीक है, एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब और भी कोई ऐसे पावर्स हैं जो आप जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस में लगाना चाहते हैं, जो पावर्स हैं जो स्पेसिफाई हो सकते हैं, वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो ऐसे कोई पावर्स भी हैं तो वो एप्लीकेबल हैं IRDA एक्ट 1999 के। दैट्स इट। सो वी आर डन विद द चैप्टर। दैट्स इट। ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। ये 3 एक्ट्स दिए हुए हैं IRDA के, एक बार देख लीजिए, मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको। अदर एक्ट्स, ये मैंने अभी क्लियर किया इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में, और ये हम पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये सेम चीज कर चुके हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा हुआ है कि कौन से इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं कि आप इंश्योरेंस बिजनेस नहीं चला सकते, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट नहीं है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ये हमने पहले भी किया है, पहले वाले चैप्टर्स में, जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर था ना, उसमें हम लोगों ने किया ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 पहले डिटेल में हमने किया, ये वहां पे रिपीट दिया हुआ। एक है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956, ये अलग से एक लाइफ इंश्योरेंस का एक्ट बना हुआ है। वैसे ही जनरल इंश्योरेंस का भी एक्ट बना हुआ है, मेराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 बना हुआ है, और एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का एक्ट बना हुआ है 1972। That's it. So we are done with the chapter. ये कुछ MCQs हैं जो आप रेफर कर सकते हैं यहाँ से, बट टुगेदर विद दिस आपको है ना पूरा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं थियोरिटिकल पार्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पढ़नी है। Okay, ma'am. Okay, so here we end our syllabus. मतलब अभी कुछ बाकी नहीं है। अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसे समझो नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट है, क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मतलब मुझे बता सकते हो, हम डाउट लेक्चर भी रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, एंड इफ नॉट डाउट लेक्चर तो एटलीस्ट हम पर्सनल बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे वो पिक निकाल कर छोड़ दो मेरे पर्सनल विंडो पे, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। ठीक है, ईदर ऑन कॉल और ऑन व्हाट्सएप, जैसे भी वो कन्वीनियंट होगा डाउट क्लियर करने का मोड, वैसे मैं कम्युनिकेट कर लूँगी आपसे। इज दैट ओके? मेरे पर्सनल विंडो पे आप पिक निकाल कर छोड़ सकते हैं कि मैम ये पॉइंट नहीं है क्लियर, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके। Okay, ma'am. Yeah, so I mean today I have completed my syllabus. आप रिवीजन कीजिए, कुछ डाउट होंगे तो ज़रूर हम कनेक्ट करेंगे। कल से मतलब अभी मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे ऑफ कोर्स, जब तक हम नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू नहीं करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू प्रैक्टिस, आप अच्छे से पढ़ाई करें,
और डू योर बेस्ट, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Yeah. चलो फिर अभी वाइंड अप करें लेक्चर? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो रिवाइज जरूर करना, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पढ़ते बैठना जो चैप्टर के एंड में दिए हुए, बिकॉज एनीथिंग इन फ्रॉम बिटवीन कैन बी आस्क्ड, ठीक है? Yes. ओके Okay, ma'am. ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, Thank ma'am. you. यस, बाय बेटा, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।